Good evening, guys. How are you? Hope today day was very good and it went in a good way, the way what you want. But certain days are as well. It never goes the same way what you want. There will be some setbacks. Will be there. You need to embrace them and you need to move forward. That is the one thing which you need to understand because every day will not be the same what you are expected. Some unwanted things will come, some unwanted pressure will come, some unwanted stress will come, but हर दिन एक जैसा नहीं होता. But you need to embrace that and you need to move forward. And if you wanted to be, the day should be very perfect, and those things means that day you should take the right decisions. That's where the things. So every day is the same. So why I came today to just today I had a few experiences of I was doing little bit research work on the investor forum and how the investors are there in India, how many investors are there. So today it will not be motivating you, but it will be motivating for the startup guys who are looking for the investors and those things. It will be really for them, it will be a a kind of small eye opener because people knows about that, but fact क्या है, fact आज कोई बोलते नहीं है. That's where the problem is. So I'm also into the league of a startup company and those things. I have my 2 startups running. One startup is already running from past 2 to 3 years, but still it is there in the same level where it started, has not grown, because I also know that I'm not focusing on to that startup in a very big way. That is one thing. But what that startup I had started checking कि भाई कोई investor अगर मिल जाए मुझे and somebody is interested onto that platform. So I was doing those works. So I found there is one strange thing is, in 140 crore population in India, the investors what we are having today is only 10 investors. 10 ही इन्वेस्टर के अंदर ही है, जिसके पास फंड है, जिसके पास पैसे हैं और जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, वो सिर्फ 10 इन्वेस्टर्स है. उससे ज़्यादा तो इन्वेस्टर है ही नहीं हमारे पास. That is the first thing. That is the first fact you need to understand. Rest, this all, when you go to the Google, you put that venture capital. Sorry, I said a word of virtual. It's not virtual. Venture capital is angel investors. ये फलाना ढींगना. There is nothing like that, my friend. To be very clear and precise, सिर्फ गिन के 10 इन्वेस्टर है. 140 करोड़ पब्लिक हमारे जो पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 10 इन्वेस्टर्स है जो जेन्युइनली है, जो करते हैं काम, और उनके पास तक पहुंचना, टू रीच देम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल एज वेल. उसके अंदर जो है तुम्हारा लक फेवर करना चाहिए, और या तुम्हारा फेट उसके अंदर लक के साथ फेवर करके तुम जाएगा तो ही जाएगा, नहीं तो यू डोंट हैव एनी अदर चॉइसेस. बाकी जो बैठे हैं, जो गूगल के अंदर अभी आप डाल के देखो तो बाकी फलाना आपको एक कम से कम 1000 लोग मिल जाएंगे जो ये काम कर रहे हैं. इन्वेस्टर मैं लेके आके देता हूँ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, मैं इतना कराता हूँ, नया स्टार्टअप कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट. ये सब ऐसे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं मेरे हिसाब से. इनका काम क्या है कि ये आप लोगों से पैसे कैसे ऐंठते हैं वो भी मैं बताता हूँ. हाउ दे टेक आउट द मनी फ्रॉम आवर पॉकेट, दैट ऑल्सो आई विल गिव यू. what they do, when you go to their platform, you feel that genuinely ki bhai these guys can help me onto that, and they are also investors, they also have the funds, but they doesn't have any funds. They are also depending on somebody else, or so somebody else is depending on somebody else, and the somebody else is also depending on somebody else. तो ये जो लास्ट को जो somebody है वो है 10 लोग जो मैं बोल रहा हूँ उनके इसके अंदर, and to reach there it is very difficult. ये क्या होते हैं कि जो गणित जो पढ़ के बैठे हैं, आई डोंट वांट टू टेक अ स्पेसिफिक डिग्री और दोस थिंग, जो गणित के जो गणित के जो बड़े माहिर जो होते हैं, जो बैठे हैं, वो लोग का काम है ये. वो लोग क्या करते हैं कि एक कंसल्टेंसी ओपन करके रख देते हैं और उसका नाम लिखते हैं वेंचर कैपिटल या दूसरा कुछ भी एंजल इन्वेस्टर्स करके बना लेते हैं. बनाने के बाद में वो लोग क्या करते हैं कि हमारे जैसे मतलब जो स्टार्टअप कंपनीज है और बेचारे जो दिमाग में आइडियाज़ लेके जो घूमते हैं, जो मतलब एक ब्रांड बनाना है या फिर कोई एआई टेक्नोलॉजी के साथ में करना है या कुछ ना कुछ करना है, तो इन लोग हमारे जैसे बैठे हैं, तो वो बंदे लोग जाते हैं उनके पास. तो इनका काम क्या है कि हमारी कंपनी पूछते हैं पहले कि कंपनी कब खोला है, जीएसटी है, ये है, वो है, फलाना, वो जो क्वेश्चन आंसर्स होता है, वो सेशन के बाद में ये लोग क्या करते हैं, हमको बोलेंगे कि हाँ हम लोग तुम्हारा जो है ना 2-3 जगह पे तुम्हारा काम करवाएंगे. एंड इवन दे सर्टन टाइम्स दे ऑल्सो से दैट कि हम गवर्नमेंट के साथ में जुड़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में भी जुड़े हैं, एंड वहाँ से भी फ़ंड अभी निकलता है. एमएसएमई के लिए जो फ़ंड निकलता है, बाकायदा एमएसएमई का जो फ़ंड जो निकलता है वो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट वेबसाइट में जाएगा तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, आपको कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि हम लोग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. देन लेटर ऑन व्हाट यू डू, यू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यू सबमिट ऑल दोस थिंग्स व्हाट दे वांटेड, एंड व्हाट दे डू,
ऑन योर बिहाफ दे मेक अ वेरी गुड एक्सेल शीट. रेवेन्यू कैसा बनेगा, क्या होगा 5 साल के बाद का, आफ्टर 5 years व्हाट विल बी योर रेवेन्यू, व्हाट इज द करंट रेवेन्यू, व्हाट इज दोज ऑल थिंग्स दे विल मेक एक्सेल शीट एंड प्लस अ पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बना के देगा. फॉर दैट दे आर टेकिंग अ मनी. 20-25 हज़ार आपका पहले 100% लेता ही लेता है. आपका 20-25 हज़ार आपका लेता ही लेता है. उन लोग ये बोलेगा ये हमारा फीस है which we take from you, and on behalf of you we'll make those all the documents and then you start submitting all those things and we will say we will submit in different platforms. तो ये क्या पैसे बनाने का एक तरीका है. तो हमारे जैसे मतलब अपने जैसे बंदे जो है, जो स्टार्टअप्स के लिए है, जो स्टार्टअप का काम करने, जो स्टार्टअप्स चालू करके बैठे हैं, बहुत सारा स्टार्टअप उनके दिमाग के अंदर है लेकिन फ्लोर तक पहुंचा नहीं है, एमवीपी अभी तक रेडी नहीं है, वैसे बंदे भी बहुत है. तो इन लोग सब क्या है ना, हमको जो वी फील दैट यू नो व्हेन वी वांट टू मेक अ स्टार्टअप, हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमारा कंपनी होना चाहिए, वी नीड टू स्टार्ट सम कंपनी एंड दोज थिंग्स. तो हम लोग बढ़ते हैं आगे. तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा ग्रीडी भी हो जाते हैं हम लोग. तो अभी हम लोग पैसे भी खर्चा कर देते हैं, चलो ठीक है 20,000 गया तो गया, चलो करते हैं, ये लोग हमको फंड ला के देगा. एंड ऑफ द डे नथिंग कम्स इन. एंड ऑफ द डे नथिंग कम्स इन. एंड ऑफ द डे यू गेट ओनली रिग्रेट्स. बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि ये जो 140 करोड़ पब्लिक के अंदर सिर्फ 10 ही लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं. बाकी सब ये जो बैठे नाम से जो बैठे, जो वेंचर कैपिटलिस्ट, ये वो फलाना ढींगना, एंजल इन्वेस्टर, ये सब कंसल्टेंट ही है. इनका काम यही है कि आपसे कंसल्टेंसी फीस पहले ले ले, उसके बाद में आपको चक्कर लगाए. बहुत चक्कर के बाद में आपको ये बोलेगा कि भाई वी डोंट थिंक सो दैट. बहुत सारा इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया. आपका जो कंपनी जो है और आपका जो स्टार्टअप है, दे आर नॉट फीलिंग एनी सक्सेसफुल इन दैट. तो ऐसे बोल के आपका चैप्टर क्लोज करा देता है. तो मेरे भाइयों ये एकदम क्लियर है, जो भी मेरा वीडियो जो भी देखते होगे, जो स्टार्टअप कंपनीज है और स्टार्टअप के लिए कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो एक बात मान के चलना कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एन इन्वेस्टर. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एन इन्वेस्टर. इन्वेस्टर को आपको मिलना बड़ा डिफ़िकल्टी है. प्रॉब्लम यह है कि जिसके हाथ में पैसे है, मैं तुम्हें और एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. देखो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिसके हाथ में पैसे है और जिसको इन्वेस्ट करना है, उन लोगों का जो उठना बैठना जो है ना, वो एक अलग जगह पे होता है. एक पॉलिश जगह पे हो सकता है, एक प्रोफेशनल एरिया में हो सकता है, एक 5 स्टार होटल में बैठ के उन लोग चाय पीते हैं, जो भी करते हैं वहाँ पे डिस्कशन होता है. उनका फ्रेंड सर्कल अलग है. और जिसके पास आइडियाज़ है, जिसके पास मतलब दिमाग है, जो लेके चल रहा है, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारा आइडियाज़ है और इम्प्लीमेंट करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये लोग का जो डिस्कशन होता है ये चाय की टपरी के अंदर होता है. छोटा से चाय के ठेले के उधर 5 रुपया चाय ग्लास में उधर होता है जो डिस्कशंस. उनके पास पैसे नहीं होते लेकिन आइडियाज़ बहुत होते हैं. और 100% उसमें से 1-2 आइडियाज़ जो इतने भी अच्छे होते हैं ना कि अगर उसको करेक्टली फंड मिल गया तो वो आइडिया जो है इट कैन एक्सप्लोर इनटू अ डिफरेंट लेवल. बट वो बेचारे कभी कर नहीं पाते, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो बैठे दूसरी जगह पे, और जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास सिर्फ दिमाग है, वो बैठा है बेचारा चाय के ठेले के इधर 10 रुपये का चाय पी के बैठा है. तो ये दोनों का मिलाप कभी होता नहीं है. ये वो वहाँ से नीचे यहाँ पे उतर के नहीं आएगा, एंड दिस गाई डजंट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी टू गो ओवर देयर एज वेल. तो ये कभी 100% पॉसिबल ही नहीं है. तो जो भी इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्टर्स जो दिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि मैं इन्वेस्टर हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, आई डोंट थिंक सो दे आर द रियल इन्वेस्टर्स. एक्चुअली स्पीकिंग हमारे पास इतने आबादी के अंदर हमारे पास सिर्फ 10 इन्वेस्टर्स ही है एक्चुअली जेन्युइन इन्वेस्टर. वहाँ तक पहुँचना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. वो लक बाई चांस होता है. मैं कभी मेरा अपना खुद का एक कोट लिखा हुआ है, एंड यू कैन गो टू goodreads.com एंड यू कैन पुट माई नेम हरी कृष्णन नायर, यू विल गेट माई कोट्स. तो उसमें मैंने एक कोट जब लिखा था, द डिस्टेंस बिटवीन द ड्रीम एंड रियलिटी इज कॉल्ड फेट. द डिस्टेंस बिटवीन द ड्रीम एंड रियलिटी इज कॉल्ड फेट. जो डिस्टेंस जो ड्रीम है और रियलिटी के बीच में, फेट ही डिसाइड करता है कि वेदर द ड्रीम कैन बी कंक्लूडेड और नॉट, और वो ड्रीम तुम्हारा सफल होगा नहीं होगा. तो इट इज़ वेरी क्लियर. तो देखो हम लोग जो है ना अभी एक तरफ से अगर अभी का ट्रेंड जो अगर देखेगा, अगर मतलब अभी का न्यू ट्रेंड विच इज़ मूविंग ऑन, यू कैन सी ओनली वन थिंग, एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कर लिया, ये कर लिया. बट डू यू गाइज बिलीव देयर वन थिंग, जहाँ पे जिस बिजनेस में जिस जगह ह्यूमन इमोशंस की ज़रूरत है, उस जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई काम नहीं है मेरे हिसाब से. आज आप कभी कभी देखो कि आपको बैंक की तरफ से कोई कॉल सेंटर से कॉल आता है, प्रेस 1 प्रेस 2, और आपका ये, सो दोज थिंग्स दोज इंट्रैक्शंस नेवर मेक यू फील कंफर्टेबल. इवन देयर इज़ अ कंप्लेंट, इफ़ आई वांट टू रजिस्टर, मैं कभी कॉल करता हूँ
तो प्रेस दिस 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 उतना ही होता है. There is no human interaction, there is no human emotions, because certain times something might have happened because of that platform, or maybe something is there but I cannot, because end में जो है एक रॉबोट ही है जिसको बिठा के उन लोगों ने बैकएंड से काम करा रहा है. तो वट एवर द इनपुट्स द रॉबोट हैज गॉट, दैट इज द ओनली थिंग which that robot is also conveying to you. Apart from that, there is nothing can be done. So okay, artificial intelligence technology is growing and that is good, but that can be a part of मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर 10 लोग मिलके कोई वजन उठा रहा है, देन रोबोट इज पिकिंग अप एंड डूइंग दोज थिंग्स. तो क्या वो टाइम कंज्यूमिंग जो है वो थोड़ा हो सकता है. एंड सेकेंड थिंग थोड़ा क्या है कि 10, 12, 15 पब्लिक मिलके काम करने की जगह पे अगर एक रोबोट 2 रोबोट को रख के अगर वो वजन उठा रहा है, देन इट बिकम्स अ फिजिबल काइंड ऑफ जॉब. हमारा टाइम भी थोड़ा ये हो जाता है. तो दोज थिंग्स आर ओके, बट नॉट इनटू काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस. इनटू सेल्स एज वेल, I don't think so that a sale can happen very genuinely when if you want to do a telephonic call to a customer, to an customer, and do a sales and complete the sales. It will not happen with the AI kind of technology and robots and those things, because where the human emotions need to be there, human emotions need to be there. Even if myself is going to a customer, I cannot go and directly talk to him that कि मेरे पास ये सामान है, ये ले लो, खरीद लो, इतने में है. No, it doesn't works like that. You need to get an emotional touch with him. You need to talk to him about his personal things, our own personal things, share with him, discuss with him. Certain places you will also add some kind of value add to him through that. So the personal discussions hote, then you need to put your main agenda, what you want to sell to him and those things, and the sale as well. I don't think so that a robot can do those kind of things, or maybe an artificial intelligence so robot बना के वो उसको I don't feel so. I don't think so. So investors, so let me come to the point. So why I came today, very clearly, precisely, keep in mind for the startup companies and the startup, those who are thinking of bringing a startup company and those things. See, initial investment तुम्हारे हाथ में होना चाहिए ही चाहिए 100%. उसके बगैर there is nothing is going to scale up your business. या फिर बैंक्स के पास जाके लोन लो, और लोन लेने के टाइम में भी वो लोग यही पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, डू यू गाइज हैव समथिंग लोन लेने के लिए, ऑन व्हाट बेसिस वी विल गिव दिस लोन. तो दिस ऑल थिंग्स आर देयर. ओके, सो दिस थिंग्स कीप इन माइंड. I had seen several what you say motivational speakers and those things. They say that transform your life, transformation, this thing and that thing. Everything I had gone through, but the only my concern with those motivational speakers, they are good, उनको सुने 10-15 मिनट जो भी है, आधा घंटा 1 घंटा जो सुने, तो you feel that okay, something he has said which need to be corrected maybe in my this thing. But end of the day the question which comes to you is कि मेरी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, उसके अंदर पैसे नहीं है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आए? नहीं है भाई मेरे पास. आई डोंट हैव द फाइनेंसेस, सो फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट. अगर उस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई कर रहा है प्रॉपरली, देन आई थिंक इट इज़ वर्थ टू लिसन देम. बट आई हैड गॉन थ्रू ऑल दोज पीपल, दे से ओनली वन थिंग इज वेक अप मॉर्निंग अर्ली, ये कर लो, वो कर लो, वेकअप कर लो, देन यू डू यू एक्सरसाइजेज एंड दोज थिंग. भाई ये सब ठीक है, फिजिकल फिटनेस एंड एवरीथिंग इज देयर, बट एंड ऑफ द डे इट्स वेरी क्लियर, पैसे के लिए पैसा ही चाहिए, पैसे कमाने के लिए पैसा ही चाहिए. इफ यू वांट टू अर्न मनी, यू नीड टू हैव मनी विथ यू. इन्वेस्टमेंट, आपके पास कैपिटल के बगैर आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते. और यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं, अभी गूगल के अंदर जाओ तो बहुत सारा नाम आपको दिखेगा कि भाई हमारे पास आओ, हम 2 करोड़ से 5 करोड़ लेके देंगे, हम 10 करोड़ 50 लाख से इतना लाख करा के दे देंगे, हम वहाँ से निकाल के देंगे, यहाँ से निकाल के देंगे, सब है. वो भी बैठे पैसे कमाने के लिए. इट्स वेरी क्लियर, दे आर ऑल्सो सिटिंग देयर टू अर्न मनी. वो क्या कर दें कि हम लोगों को पहले हमारे हाथ से डॉक्यूमेंट लेके एक थोड़ी अच्छी बातें कर करके एट द लास्ट व्हेन एवरीथिंग फिनिशेस विद द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, नाउ दे विल से दैट देयर इज अ इनिशियल फी फॉर दैट. बहुत प्यार से बोलते हैं, देयर इज एन इनिशियल फी फॉर दैट. Around 20,000 rupees you need to add. So we will make your presentation, PPD presentation, we will make a good Excel sheet which will show the revenue of 5 years to 10 years कि क्या होगा करके. तो ये सब दिखाने के बाद में वो सब बना के दे देंगे. नाउ द जर्नी इज जर्नी तो तुमको ही करना है, वो थोड़ी आएगा तुम्हारे साथ में. सम पीपल सेइंग दैट हम लोग एमएससी में आपको एमएसएमई से हम लोन निकाल के देंगे एंड वी नो दैट हाउ टू डू दैट. भाई सब डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि सब डॉक्यूमेंट्स वो लोग अपलोड करके
इनिशियल इसमें हमारे बिहाफ में दे विल डू ऑल दोज थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू द एमएसएमई रिप्लाइज टू यू, और मे बी एमएसएमई के साथ में तुमको बात करना है, देर यू एमएसएमई गवर्नमेंट डजंट नीड्स एनीबडी इन बिटवीन मीडिएटर, दे नीड ओनली दैट ओके स्टार्टअप का जो बंदा जो ओनर जो है वो एंड एमएसएमई, दैट्स ऑल, दे डोंट नीड एनी कंसल्टेंसी बिटवीन दैट. सो कीप इन माइंड दैट ये सब मतलब दिस आर द गाइज हु मेक्स फ्रॉड अकॉर्डिंग टू मी. सो I very clearly say that कि it's very difficult to get an investment. It's very difficult in today's time to get an investment because there is hardly 10 people who are really investing in the companies, and we are not able to reach them, and it is quite impossible to reach them. I will not say that it is not possible. It is possible, but from my side I say it is impossible. पॉसिबल है क्योंकि देखो हर इंसान का लक एक जैसा नहीं होता, हर इंसान का लक कभी किसी का लक फेवर कर लेता है एंड देन ही सडनली मूव्स ऑन एंड ही कैन बोल नहीं सकता बिकॉज दिस द वे काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव, द वे रिलेशन, द वे आवर फ्रेंड सर्कल इज देयर, वे वी द मेंटर्स हु आर मेंटरिंग अस, और उनका रिलेशनशिप देन कैन गो थ्रू. बट एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल स्टार्टअप कंपनी, एक जिसका कोई पहचान नहीं है, जो मतलब है दिमाग से, उसके पास दिमाग में है सब कुछ और उसको उतारना है एज अ ब्रांड और मे बी समथिंग व्हाट ही वांट्स टू डू, ब्रिंग अ स्टार्टअप कंपनी, बट यू नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. द ओनली वन थिंग व्हाट आई विल ऑल्सो टेल द स्टार्टअप कंपनीज कि यू गाइस जस्ट फोकस ऑन द 150 करोड़ पीपल हम लोग जो इंडिया में जो है उनका डेली नीड्स क्या है, गैप कहाँ पे है उसको देखो, और उसको उसमें अगर कुछ अगर बिजनेस आप डेवलप कर सकते हो 100% इट विल ऑल्सो वर्क. नीड्स ऑफ द पीपल, वेयर एग्जैक्टली वी आर लैकिंग एज ए ह्यूमन, हम लोग का लैकिंग कहाँ पे है, डेली हमारा क्या नीड्स है और किस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर ध्यान दे के अगर उसको कोई सोल्यूशन लेके आ रहा है देन 100% इट विल वर्क. बट बी केयरफुल व्हेन यू गो टू द इन्वेस्टर्स बिकॉज यू नो आई थॉट टू शेयर विथ यू टुडे इटसेल्फ. व्हाई यू नो, बिकॉज मैं पिछले बहुत टाइम से इसका एनालाइज कर रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, हाउ द इन्वेस्टर्स आर. तो मैंने जहाँ जहाँ देखा एंड द वे आई गॉट दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स एंड दोस काइंड ऑफ मेरे इनसे इंटरेक्शंस एंड दिस थिंग्स हैपेंड, आई थॉट दैट दिस इज अ मनी मेकिंग काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स. देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स हु विल से दैट यू नो if you want to become like a consultant also, you join with us, okay, then if you have an idea or maybe if you have known to some companies or maybe some startup people, they want to do something, then through you bring them up, then you join with us. अच्छा, ये सब करने के बाद में they will organize an event, और इवेंट में बोलेगा तुम्हारे जैसे बहुत सारा कंसल्टेंट्स और स्टार्टअप इन्वेस्टर्स आ रहा है. अच्छा, वो इवेंट का पैसे कितना, 50,000, 60,000, 3 लाख, 3.5 लाख, तो वो तो पैसे कमा के निकल जाएगा. तुम बेचारा अपना जो भी हार्ड अर्न मनी जो भी है पड़ा हुआ है उसको उठा के तुम डाल दोगे, तुम सोचोगे शायद मैं उधर जाने के बाद मेरा तकदीर कुछ खुल जाएगा या वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. 5 पैसे का आने वाला नहीं, 5 पैसे आने वाला नहीं है भाई. इट्स वेरी क्लियर दैट यू विल नॉट गेट एनी थिंग फ्रॉम देयर. यू विल जस्ट गो देयर, सिट विथ फ्यू बिग पीपल जिसने पैसे बनाए एंड यू विल सी सम वेल नोन पीपल, वेल नोन फिगर सिटिंग देयर. वो लोग बात करेंगे, इंट्रैक्शन, द इंट्रैक्शंस विल हैपन. Okay, you can just go and say hi, hello to them. If you want to take a selfie, you can take a selfie. That is the only thing which you can do. So be very careful while you are going to an investor forum or those things. मेरे हिसाब से कि when you are going to those kind of platforms, first be careful. Beware of those things. Do a very good verification, ground analysis of that company, whether they had done those kind of investments for other companies or not. अगर नहीं किया है तो मत जाना मेरे हिसाब से. व्हाट विल हैपन, दे विल जस्ट सिंपली टेक योर मनी एंड दे विल से यू टाटा बाय बाय. द एंड ऑफ द डे व्हाट दे विल डू, यू नो, व्हाट एवर द पीपीटी प्रेजेंटेशन, व्हाट एवर द एक्सेल शीट दे हैव मेड, दे विल गिव एंटायर डॉक्यूमेंट्स टू यू एंड दे विल से आपका जो 20,000 का जो था वो हमने बना के दे दिया, नाउ यू नो वी कैन नॉट डू एनीथिंग. तो यही होता है. तो इन्वेस्टर के पीछे मेरे हिसाब से पब्लिक बहुत भागते हैं. बहुत सारे पब्लिक जो है कंसल्टेंट्स, ये वो इन्वेस्टर्स, यहाँ पे इन्वेस्टर है गूगल के में अंदर डालो तो तुमको मालूम है कि हाउ मेनी इन्वेस्टर्स नेम्स कम्स, बहुत सारा कंसल्टेंट्स का नाम आएगा, बहुत सारा इन्वेस्टर्स का नाम आएगा. मुझे नहीं लगता ये लोग से काम होगा, बिकॉज सिर्फ 10 लोग ही है जो कर रहे हैं काम. एक्चुअली स्पीकिंग देयर इज ओनली 10 पीपल आर देयर हु इज रियली इन्वेस्टिंग. रेस्ट ऑल द पीपल हु आर सीइंग इज दिस गाइज आर ऑल मीडिएटर्स.
These are all mediators. इनके पास जाओ, they will do something for you, they will take money from you, then it will go to the next mediator, from there to next. At the end it reaches to the 10 people. बट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच देयर, क्योंकि जब तक ये खत्म हो जाता है ना कहानी, यहाँ पे 2 मीडिएटर में कहानी खत्म हो जाए तो तुम्हारे पैसे भी ले लेके उसके बाद में तुम्हारे पास उतनी ताकत भी नहीं होती है कि भाई उधर जाऊँ नहीं जाऊँ करके. तो बी केयरफुल ऑन टू दैट. एंड यू नो, I thought to share my things. You know, I was following up a lot of investors and those things, where I found that no, whatever you are seeing in Google or whatever you are seeing around is not a proper, is not a genuine investors. There are only few, हाथ के गिने हुए सिर्फ 10 लोग ही हैं in India. So that's where the thing is. So thanks a lot. Thank you. Bye bye. Let's meet tomorrow and I'll share you one more video for something related to transformational speaking and those things. So thanks a lot for watching my video. Thanks a lot. Bye bye. Take care.